ہمارے آئل میں ایک ڈفرینٹ سی خوشبو آتی ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے تو بہت سے آگے سے فوائد ہیں، جیسے یہ کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، سر پہ لگانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب تو مختلف ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا بھی اس میں بنائیں، اس کے تیل میں بنائیں۔ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس دی گئی ہے کہ وہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اس سرسوں کے تیل میں پکاتے ہیں۔ آپ ان کی جتنی بھی ریسیپیز اٹھا کے دیکھ لیں گے اس میں وہ یوز سرسوں کا تیل کر رہے ہیں۔ جب یہ اس میں ڈالی جاتی ہے تو وہ مشین اپنی رننگ میں آ کے اس کو جب وہ کرش کرتی ہے، اس میں سے آئل باہر نکل جاتا ہے، اور جو پیچھے بچتا ہے را مٹیریل وہ اس کو کھل کہا جاتا ہے۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل چکوال سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، چکوال میں اس وقت سرسوں کی فصل اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ سرسوں کی جو فصل ہے یہ اتنی کارآمد ہے کہ اس سے خوردنی تیل بھی بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے کھل جو ہے وہ ان کی خوراک وہ تیار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل ملز میں یہی سرسوں جو ہے وہ ڈائی کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اچار ڈالنے کے لیے جو آئل استعمال ہوتا ہے وہ سرسوں کا ہی جو ہے وہ آئل استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو چکوال کی سرسوں ہے وہ اس لیے بھی بڑی خاص ہے کہ وہاں جو چکوال میں اگنے والی سرسوں کی فصل ہے اس میں آئل کی جو مقدار ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ باقی اضلاع میں ہونے والی سرسوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں چکوال کی غلہ منڈی میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں طیب نذیر صاحب جو آڑت کا کام کرتے ہیں اور سرسوں کی فصل پورے ضلع سے اٹھانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ یہ محنت کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس سال سرسوں کی فصل جو ہے وہ کیسی رہی ہے، اور یہ کہاں کہاں پر کس طرح استعمال کی جاتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ طیب صاحب، مجھے ذرا بتائیں گے کہ اس دفعہ کیا صورتحال رہی ضلع چکوال میں سرسوں کی فصل کے حوالے سے؟ سرسوں کی فصل کے حوالے سے صورتحال تو یہ ہے کہ اس دفعہ جو ایوریج آ رہی ہے وہ بہت کم آ رہی ہے، کیونکہ بارشیں ٹائم پہ نہیں ہو سکی۔ لیکن پہلے تو ہمیں امید تھی کہ یہ تو جیسے 4 ماہ بارش ہوئی نہیں، تو ہمیں امید تھی کہ شاید یہ فصل اس دفعہ نہیں آئے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور بارش آ گئی، تو اس وجہ سے کچھ حالات بہتر ہو گئے۔ لیکن جو پہلے جس جگہ سے ایوریج آتی تھی اب وہ ایوریج نہیں آ رہی۔ اچھا، عمومی طور پہ کتنی کو جو ہے وہ فصل ہو جاتی ہے ہر سال اگر بارش ہو جائے تو؟ بارش ہو جائے تو بہت اچھی فصل ہوتی ہے، جیسے کہ ایک زمین کا ٹکڑا جسے ہم لیتے ہیں، ایک آپ کہہ سکتے ہیں 4 کنال سے ہم لوگ لیتے ہیں 8 گٹو یا 10 گٹو، تو ابھی وہاں سے تقریباً 5 یا 6 کی ایوریج آ رہی ہے۔ اچھا، یہ سرسوں کی فصل کاشت کب کی جاتی ہے؟ اس کے لیے کیسی زمین چاہیے ہوتی ہے؟ یہ سرسوں کی فصل تو کاشت کی جاتی ہے تقریباً مونگ پھلی کی فصل اٹھانے کے بعد، اور اس کے لیے زمین نرم اور پھر کھاد ڈال کے اس کو تیار کیا جاتا ہے، ٹریکٹر ہل یہ وہ سب کچھ کر کے اس کے بعد پھر اس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ کتنا کو ٹائم اس فصل کو تیار ہونے میں لگ جاتا ہے؟ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 5 سے 6 ماہ۔ 5 سے 6 ماہ؟ بالکل۔ اچھا، یہ جو سرسوں کی فصل اگانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ چکوال کی سرسوں میں آئل کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ چکوال کی زمین میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں سے آئل کی جو مقدار ہے وہ زیادہ آتی ہے؟ اس زمین میں اللہ کا کرم ہے جی، اور یہاں کے میٹھے لوگ ہیں، میٹھی تاثیر ہے زمین کی۔ اچھا، ویسے اگر کاروباری لحاظ سے دیکھا جائے جو زمیندار طبقہ ہے ان کے لیے سرسوں کی فصل جو ہے وہ کتنی کو منافع بخش ہو سکتی ہے؟ بہت اچھی فصل ہوتی ہے جی، بہت زیادہ منافع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اس کے آگے سے جیسے ہم مونگ پھلی کی ایک بات کرتے ہیں کہ اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ صرف کھانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے تو بہت سے آگے سے فوائد ہیں، جیسے یہ کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، سر پہ لگانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب تو مختلف ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا بھی اس میں بنائیں، اس کے تیل میں بنائیں۔ اچھا، جو سرسوں کی فصل ہے اس کا جو بنیادی استعمال ہے وہ یہی ہے کہ اسے خوردنی تیل وغیرہ نکالا جاتا ہے؟ جی بالکل، اس کا بنیادی استعمال یہی ہے کہ اس کا خوردنی تیل نکالا جاتا ہے، پھر آگے سے اس تیل کے بہت سارے آگے سے جگہ ہیں جہاں پہ وہ استعمال ہوتی ہے، جیسے اب کھانے میں استعمال ہو رہی ہے، اور مختلف جگہ پہ یہ استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کے جتنا بھی یہ علاقہ ہے گجر خان سے لے کے اور اینڈ آپ کا رائے منڈ لاہور تک، وہاں پہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، آپ بتا سکتے ہیں مخصوص کر کے کہ کن کن جگہوں پہ کن کن کھانے کی اشیاء میں سرسوں کا تیل جو استعمال کیا جاتا ہے؟ اچار ہو گیا، آپ کے جتنے بھی کھانے پکنے والے ہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے۔ اب بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس دی گئی ہے کہ وہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اس سرسوں کے تیل میں پکاتے ہیں۔ آپ ان کی جتنی بھی ریسیپیز اٹھا کے دیکھ لیں گے اس میں وہ یوز سرسوں کا تیل کر رہے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں ایسی کیا خاص بات ہے جو دوسرے آئل میں نہیں ہوتی؟ سر، اس کی وہ کولیسٹرول آپ کا کنٹرول رہتا ہے۔ آپ جتنے بھی اچھے آپ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ سب آپ کو کہیں گے کہ آپ سرسوں کے تیل میں کھانا بنائیں، اس سے آپ کا کولیسٹرول کنٹرول رہے گا۔
अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यही सरसों का ऑयल जो है ये बतौर डाई भी इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल मिल्स में, इससे जानवरों की भी खुराक बनती है। ये क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इसको जानवरों की जो है वो खुराक में इस्तेमाल किया जाता है। ये वनडे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सर्दियों में ये जानवरों को पिलाया जाता है ताकि खुश्की ना हो। अच्छा, ये जो सरसों की फसल यहाँ पर होती है, क्या ये पाकिस्तान में ही इस्तेमाल हो जाती है या एक्सपोर्ट भी की जाती है? सर अभी तक तो हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं करती है, वैसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तावन किस तरह का आपको चाहिए हुकूमत से? हमें ताउन चाहिए कि वो टैक्स में कमी करें, हमें मौके दें। अब मैं फिर बार बार आप कहेंगे अपने पड़ोसी मुल्क का जिक्र करता है, उनकी तारीफ़ें करता है, ठीक है, वो बेशक हमारे दुश्मन मुल्क है, लेकिन उन्होंने इतनी सहूलियात दी हुई अपने ज़िम्मेदार को, अपने मिडल मैन को, लेकिन हमें वो सहूलियात नहीं दी जाती हैं। हम लोग हमेशा वो सर पे हाथ रख के बैठे हैं कि अब ये टैक्स आ गया, अब ये देना, अब ये टैक्स आ गया, अब ये देना। इतना हम लोग कमा नहीं रहे जितना हम लोग टैक्स पे कर। क्या रेट्स चल रहे हैं इस दफ़ा सरसों के, और थोड़ा सा ज़रा कंपैरिजन करके बताएं कि लास्ट ईयर क्या रेट्स थे और इस दफ़ा रेट्स जो है वो क्या चल रहे हैं? इस दफ़ा सर रेट चल रहे हैं तकरीबन 6,500 से लेके 7,300 तक, 7,500 तक। लास्ट ईयर यही रेट थे, तकरीबन 7,500 से लेके 9,000 तक। अच्छा, लास्ट ईयर महंगी थी? लास्ट ईयर महंगी थी। इस दफ़ा फसल की बिजाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे से अब आपको पता है हर चीज़ में महंगाई इतनी हो चुकी है कि कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर है वो हमारा कम हो चुका है, जिसकी वजह से फिर सेल आउट नहीं होती। जब सेल आउट नहीं होती, आपको पता है जिस चीज़ की सेल आउट ना हो उसकी ऑटोमेटिकली जो कदर है वो कम हो जाती है। अच्छा, इसका एंड जो यूज़र है जहाँ पे आप भेजते हैं, कहाँ कहाँ पे भेजते हैं, किस किस जो है वो फील्ड में भेजते हैं? सर हमारा तो पूरे पाकिस्तान में काम है, पूरे पाकिस्तान में ही जाती है। हर ज़िले की अपनी अपनी एक क्वालिटी है, हर ज़िले में अपना अपना एक कस्टमर है जो अपनी अपनी क्वालिटी बनाता है, तो हम लोग हर ज़िले में फ्राहम कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि जो सरसों की फसल काश्त करने के लिए कौन कौन सी खादें इस्तेमाल की जाती हैं, कौन कौन से हल चलाए जाते हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं कि जिसकी वजह से फसल अच्छी हो सके? सर इसके लिए जो खाद है वो नाइट्रोपास यूज़ की जाती है और हल उसके लिए चलाया जाता है। 2-3 किस्म के हल चलाए जाते हैं। ये मुझसे ज़्यादा बेहतर तो आपको ज़िम्मेदार एक बता सकता है जो ज़मीन में उतर के उसकी मेहनत कर रहा होता है। हम लोग तो उनको फराहमी कर रहे होते हैं, जैसे डीजल की फराहमी कर रहे हैं, उनको खाद की फराहमी कर रहे हैं, जो वो हमसे डिमांड कर रहे हैं उनको वो फराहमी कर रहे हैं। अच्छा, यही सरसों का साग भी लोग बहुत पसंद करते हैं। जब फसल खड़ी होती है तो लोग तो उसके वो पत्ते जो है वो उखाड़ उखाड़ के खाते रहते हैं। तो क्या इससे भी फसल की जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावार है, उस पर कोई असर पड़ता है? नहीं, उसमें तो मैं तो कहूँगा कि जिन जिन ज़मीनों से हम लोग वो साग लिया जाता है उनकी फसल ज़्यादा होती होगी कि लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वो तो मुफीद आम है। अब पिछले दिनों तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा मजाक बना हुआ था कि क्या बना है जी, मेरे घर साग बना है। हम लोग तो चले 90s के लोग तो इसको चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, जनरेशन है, वो कहते हैं कि क्या घास फूस लें, हमें नहीं खाना है। अच्छा, आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि लास्ट ईयर जो है वो कीमत भी ज़्यादा थी, इस दफ़ा कीमत कम है, बारिशें कम हुई, ये तो वो फैक्टर्स हैं जो आप बाहर से देख सकते हैं। क्या बीज उठा के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है या ये कम है? वो आप अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? वो हम लोग नमी का तनासब देख के अंदाज़ा लगाते हैं। जिसमें नमी ज़्यादा होती है उसमें फिर ज़रा प्रॉब्लम आ जाती है। ज़ाहिर सी बात है, इसको जब अपने स्पाइलर में डालना है तो स्पाइलर जब खुश्क चीज़ होगी तो उसको वो ऑटोमेटिकली तेल बाहर निकाल लेगा, और जब वो नमी में आएगी तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है पानी होगा और वो चीज़ ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये जो जानवरों के लिए खुराक बनाते हैं इससे सरसों से, वो कैसे बनाई जाती है? उसमें तो इतना ज़्यादा ऑयल होता है। सर बेसिकली जब ये सरसों को आप ये मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे बीज हैं, इनकी एक मशीन है जिसको स्पाइलर कहा जाता है और हमारी अपनी मकामी ज़बान में उसको घानी कहा जाता है। जब ये उसमें डाली जाती है तो वो मशीन अपनी रनिंग में आके उसको जब क्रश करती है उसमें से ऑयल बाहर निकल जाता है, और जो पीछे बचता है रॉ मटेरियल वो उसको खल कहा जाता है, वो जानवरों को खिलाई जाती है। वो भी अच्छी खासी महंगी बिकती है? जी सर, बेशक वो महंगी बिकती है। अभी उसका रेट मेरे ख्याल में 900 से लेके 1200 तक चल रहा है। अच्छा, नमी के तनासब की आप बात कर रहे हैं कि इस दफ़ा शायद ज़्यादा है या कम है, लेकिन नमी का तनासब कैसे आ सकता है? ये तो फलियों में से आप दाने निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर ले आते, इतनी धूप लगवाते हैं, फिर भी नमी कहाँ से आती है? सर नमी तो इसमें कुदरती तौर पे पहले से मौजूद होती है। जब ये मशीन में से हार्वेस्ट की जाती है तो उसके बाद उसमें नमी होती है। कुछ हमारे ज़िम्मेदार हैं जो मेहनत करके घर खुश्क उसको कर लेते हैं, कुछ हम जैसे भी ज़िम्मेदार होते हैं जो कहते हैं कि जो जाएगी आगे वो खुद ही तैयार करते रहेंगे, फिर वो हम लोग मेहनत करते हैं और उसको तैयार करते हैं। अच्छा, बारिशों की आपने शुरू में बात की थी कि इस दफ़ा बारिशें कम हुई हैं, कितनी को बारिशें लगनी चाहिए इस फसल को, किस किस सीज़न में बारिशें होनी चाहिए, और अगर बारिशें कम जिस तरह अब कम हो रही हैं तो उसका क्या इलाज हो सकता है कि हमारी फसल जो है वो मुतासर ना हो? सर उसका और तो इलाज कोई नहीं है, फिर वो वाटर इरिगेशन सिस्टम ही है, वो लगाया जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो हमें
हमारे ज़िम्मेदारों को वो सिक्योरिटी दे कि वो उनको वाटर इरिगेशन सिस्टम लगा के दे, उसके बाद उनको टरबाइंस लगा के दे, उनको देखें जो चीज़ अल्लाह पाक कर सकते हो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा उसके लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत करके हम उसको किसी हद तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, किस सीजन में बारिशें जो है वो इफेक्टिव होती हैं? जब ये बिजाई हो जाती है, जब ये अपनी वो निकाल लेती है फूल वगैरह, उस सीज़न में बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वैसे तो आपने मूंगफली का कहा, लेकिन महीना कौन सा बनता है वो जब इसकी बिजाई की जाती है? जब तकरीबन सितंबर और अक्टूबर इसका महीना। और इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई मार्च में स्टार्ट हो जाती है, 15 मार्च के बाद। अच्छा तैयब साहब, आप क्योंकि आड़ती हैं और फसलें पूरे ज़िला से जो है वो आप खरीदते हैं, क्या फ़र्क क्या है चकवाल की जो सरसों की फसल है या जो दूसरे अजला की, या जिस तरह आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, जो नहरी इलाके की जो ये फसल है और जो बारानी इलाके की ये जो फसल है, उसकी पैदावार में और उसकी जो क्वालिटी में कोई फ़र्क होता है? बेशक क्वालिटी में फ़र्क होता है। अगर आप अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता था कि जो हमारे इलाके का जो ऑयल निकलता है उसका कलर डिफरेंट होता है, उसकी खुशबू डिफरेंट होती है, और हमारे ऑयल में एक डिफरेंट सी खुशबू आती है जिसकी वजह से हर जगह पसंद किया जाता है। वो ही आप सेकंड साइड पे चले जाए तो जो नहरी अजला की फसल है उसमें ना खुशबू है ना उसका वो खूबसूरत गोल्डन कलर है, तो उस वजह से लोग उसको कम पसंद करते हैं। अच्छा, तो वैसे वहाँ नहरी इलाकों में तो फसल ज़्यादा होती होगी? जाहिर सी बात है जी, उनका पानी लगता है, उनको बारिश की टेंशन नहीं है। हम लोग तो बारिश की दुआएं करते रहते हैं, वो लोग उनको टेंशन नहीं है, उन्होंने अपने नहर से पानी निकाल के अपनी फसल को लगा लेना है। अच्छा, 6500 से 7300 तक रेट चल रहा है जो आप ज़मींदार से खरीद रहे हैं। अब क्योंकि आप आड़ती हैं तो आगे जब आप बेचते हैं तो मैं पूछ सकता हूँ कि कितने में आगे ये निकल जाती है? डेफिनेटली पूछ सकते हैं, हम लोग तो मिडिल मैन है, आपको हर जगह लिखा हुआ आ रहा होगा। आप बेशक अपने नाज़रीन को दिखाएं कि सब के नीचे लिखा हुआ है कमीशन एजेंट्स। हम तो एक मामूली सा कमीशन लेके और आगे सेंड कर देते हैं। आगे कितने को मैं कहाँ पे जाती है, किस तरह बिकती है? सेम रेट होते हैं, सेम रेट में जाती है। हम लोग सिर्फ अपना कमीशन चार्ज करते हैं। दोनों साइडों से? नहीं, एक साइड से चार्ज होता है, एक साइड से नहीं चार्ज। किस साइड से चार्ज होता है? जिम्मेदार साइड से चार्ज होता है, अगला बदला हमें कमीशन नहीं देता है। वो उसी रेट पे लेता है जिस पे आप लेते हैं? जिस पे हम ले रहे हैं वो उसी रेट पे ले जाता है। तो आपका जो कमीशन होता है वो प्राइस में मैनेज होता है या वो साथ आप कुछ किलो के हिसाब से सरसों अलग से ले लेते हैं? नहीं, वो प्राइस में एडजस्ट हो जाता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती बातों का। सरसों की फसल के बारे में हमें बहुत सारी मुफीद मालूमात आपने दी हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि चकवाल में जो सरसों की फसल है वो हर साल की तरह इस दफ़ा भी पक चुकी है, तैयार हो चुकी है, मंडियों में आ चुकी है और अब आगे इसको भेजा जाएगा ताकि आगे अचार का मौसम आने वाला है। गर्मियों में अचार लोग डालेंगे तो सरसों का ऑयल इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा और भी इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं जो तैयब साहब ने आपको बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।